श्री डॉक्टर वी शिवासदन 0 hour. Dr. V. Shivasadan. There is an urgent need to address the issue of the unemployment, sir. Here the government is telling they will provide the jobs. But the thing is that, sir, lakhs of employment, lakhs of vacancies are vacant in the country. So it should be addressed, sir, in railway, military, and everywhere the posts are laying vacant, sir. You see the points. I have asked the question to the Prime Minister, Honorable Prime Minister, about the vacancies, and I got the reply. There is a 9,79,327 posts are lying vacant in these various ministries and departments. Sir, this government is not creating the jobs. They are destroying the existing jobs, sir. Sir, I have a data given by the government. The data, sir, you please look at the data. In 2016-17, there were 11 lakh and 11.5 lakh regular employees in central public sector units, sir. But what is the existing situation? What is the situation now, sir? The data by the government says that it has come down to 8.6 lakh. The Labour Ministry has given this data to me in this house, sir. It means that 3 lakh jobs has been destroyed by this government, not only in the public sector companies, even in the central services also. Proper recruitment is not happening here, sir. Look at the condition of Indian Forest Service. Sir, there are 1,006 vacancies. 1/3 of the posts are lying vacant, sir. We are discussing increasing problems of man-animal conflicts, sir. But it is the fact that there are not enough officers to manage our forest, sir. Look at the condition of Indian Economic Service. There are 105 posts. Vacancies are lying, sir. Sir, 1/5 of the posts are lying vacant. Again, the recruitment is coming down year by year. This shows the lack of seriousness about the economic policy of the government, sir. More than that, sir, it seems that this government is planning to kill some services. Look at the condition of Indian Economic Service. In 2007, there were 111 recruitments, sir. But still, the number of vacancies is 356. Even there are vacancies in government is not ready to fill, sir. In economic service, in forest service, in information service, the vacancies are there, sir. So you please look the matter. Shri Dipender Singh Hooda. सर, ये मैं एक अति महत्वपूर्ण मुद्दा ओबीसी की क्रीमी लेयर के लिए उठाने के लिए मैं खड़ा होना चाहता था, जो हरियाणा सरकार ने 8 लाख से घटा के 6 लाख कर दिया। लेकिन अगर हमारे से नेता विपक्ष को बोलने नहीं दिया जाएगा, Take your seat. Shri Vijaypal Singh Tomar. No, you are not availing it. Nothing will go on record. माननीय सभापति महोदय, धन्यवाद। केंद्र सरकार ने उड़ान योजना के अंतर्गत देश के विभिन्न मुख्य शहरों को घरेलू हवाई सेवा से जोड़ने का निश्चय किया है। मेरठ पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मुख्य शहर है, जिसका अपना एक ऐतिहासिक महत्व है। यहाँ से 58-57 की आज़ादी की क्रांति की शुरुआत हुई थी, जिसकी याद में शहीद स्मारक एवं म्यूजियम बना है तथा बाबा अमरनाथ मंदिर पर्यटन केंद्र के रूप में जाने जाते हैं। मान्यवर महाभारत काल की राजधानी हस्तिनापुर मेरठ में स्थित है और पांडवों के समय के वारणावरात विदुर कुटीर, परीक्षितगढ़, शुक्रताल आसपास ही सब स्थित है। मेरठ खेल के सामान का देश का दूसरे नंबर का हब है तथा विश्व भर में क्रिकेट के लिए मेरठ निर्मित बैट और बॉल के प्रयोग किए जाते हैं। विश्व के अधिकांश खिलाड़ी सामान खरीदने आते हैं। मेरठ जिले में ही एशिया का ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। मेरठ से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ करीब 550 किलोमीटर है। मेरठ से इलाहाबाद हाई कोर्ट करीब 750 किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश के बाबा विश्वनाथ का मंदिर 850 किलोमीटर है और गोरखनाथ धाम 800 किलोमीटर है। मान्यवर यात्रियों को मेरठ से जाने में 12 से 20 घंटे का समय लगता है।
यात्रियों की परेशानी का सामना करना पड़ता है। मान्यवर, मेरठ में हवाई पट्टी है जिससे वहां पर चार्टर प्लेन और हेलीकॉप्टर उतरते हैं। मेरठ जिले में देश के विभिन्न शहरों को हवाई यात्रा शुरू करने से दिल्ली हवाई अड्डे पर भी एयर ट्रैफिक और यात्रियों का दबाव कम होगा। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहूंगा कि मेरठ की हवाई पट्टी का विस्तारीकरण कर उड़ान योजना के अंतर्गत देश के विभिन्न शहरों को मेरठ से घरेलू हवाई उड़ान शुरू की जाए। धन्यवाद। श्री सुशील कुमार मोदी। सभापति महोदय, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जो परंपरागत प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, डिजिटल मीडिया है, न्यूज़ चैनल्स हैं, संकट के दौर से गुजर रहे हैं। उनको समाचार संकलन करने, उसकी सच्चाई का पता लगाने, कंटेंट क्रिएट करने के लिए पत्रकार, रिपोर्टर्स, एंकर्स, कैमरामैन, न्यूज़ रूम ऑफिसर्स पर अरबों खरबों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। इनकी आमदनी का मुख्य स्रोत विज्ञापन है, परंतु हाल के वर्षों में टेक जायंट्स जैसे फेसबुक, गूगल, यूट्यूब के उदय के बाद विज्ञापन का बड़ा हिस्सा टेक जायंट्स के पास चला जा रहा है। ये जो बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म है, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के न्यूज़ कंटेंट को दिखाते हैं और उससे विज्ञापन के माध्यम से पैसा कमाते हैं। इन बिग टेक को न्यूज़ कंटेंट तैयार करने के लिए पैसा खर्च नहीं करना पड़ता है, परंतु तैयार कंटेंट को ये मुफ्त में दिखाते हैं। गूगल इंडिया की विज्ञापन से ही इनकम 2021-22 में 24,927 करोड़ तथा फेसबुक की 16,189 करोड़ थी, जो पिछले वर्ष की तुलना में 75% ज़्यादा है। आवश्यकता कि इन बिग टेक को बाध्य किया जाए कि विज्ञापन के रेवेन्यू को ओरिजिनल न्यूज़ कंटेंट बनाने वालों को शेयर करें। श्रुति महोदय, 2021 में ऑस्ट्रेलिया ने न्यूज़ मीडिया बार्गेनिंग कोड बनाकर एडवर्टीजमेंट रेवेन्यू शेयरिंग के लिए बाध्य किया था। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, ईयू ने कानून बनाया है। न्यूजीलैंड भी कानून बनाने की पहल कर रही है। सत्य महोदय, मैं भारत सरकार से आग्रह करता हूं कि डिजिटल इंडिया एक्ट जो भारत सरकार लाने जा रही है उसमें इसका प्रावधान करें और कंपटीशन कमीशन इसमें हस्तक्षेप करे। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, ईयू, कनाडा के समान कानून बनाए ताकि गूगल, फेसबुक को एडवर्टीजमेंट की आय के रेवेन्यू शेयरिंग के लिए बाध्य किया जा सके, ताकि भारत के प्रिंट और न्यूज़ टीवी चैनल को आर्थिक संकट से बचाया जा सके। सत्य महोदय, आत्मनिर्भर भारत नीड्स आत्मनिर्भर न्यूज़ इंडस्ट्री। सत्य महोदय, ये जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर जब न्यूज़ बार्गेनिंग कोड आया तो फेसबुक ने और गूगल ने उनको धमकी दिया कि हम ब्लैकआउट कर देंगे। उनको महीनों तक ब्लैकआउट करने की धमकी दिया, लेकिन कनाडा उससे, ऑस्ट्रेलिया उससे बाज उसके का झुका नहीं और उसे कानून बनाया, मीडिया बार्गेनिंग कोड। और आज ऑस्ट्रेलिया के मीडिया को अरबों रुपए की आय हो रही है, क्योंकि जो एडवर्टीजमेंट है उसके रेवेन्यू शेयरिंग के द्वारा। श्री आदित्य प्रसाद। आदरणीय सभापति महोदय, मैं झारखंड राज्य से आता हूं। झारखंड राज्य नदी, नाला, पहाड़, पर्वत वाला राज्य है, लेकिन विगत 3 वर्षों से झारखंड राज्य में गैरमजरूआ जमीन की नेचर बदल करके खरीद बिक्री का काम किया जा रहा है और लगभग 3,62,867 एकड़ जमीन में का अवैध कब्जा जमाबंदी किया गया है और 1,75,000 इस प्रकार के मामले पूरे राज्य में लंबित हैं और सभी राज्यों में इस प्रकार के जमीन का घोटाला चल रहा है। और मैं जिला का बात करूं तो बोकारो जिलों में अकेले 96,150 एकड़ की जमाबंदी 50,662 लोगों के बीच में किया गया है। जमीन की लूट मची हुई है। जिस प्रकार से गैरमजरूआ जमीन का वहां पर लूट बचाया जा रहा है, कभी भी सरकारी कोई योजना यदि झारखंड में जाती है तो मुझे लगता है कि उस राज्य में सरकारी योजनाओं को धरातल में उतारने में काफी कठिनाइयों का सरकार को सामना करना पड़ेगा। महोदय, तत्कालीन 1980 और 82 की सरकार ने वहां पर रांची जिला के और मांझी प्रखंड के मुट्टा गांव में
भूमिहीन परिवारों को 100 एकड़ जमीन आवंटन देने का काम किया था, लेकिन राज्य की सरकार के संरक्षण में सत्ता के शीर्ष पे बैठे हुए लोगों के इशारे पर तो अवैध जमीन का कारोबार करते हैं, वैसे लोग वहां पर जो भूमिहीन जमीन को जिस पर खेती बाड़ी करके अपना जीविकोपार्जन करने का काम कर रहे हैं, और उसे परिवार के सदस्यों को लोग डराने और धमकाने का काम कर रहे हैं और भूमि खाली करने के लिए हमेशा दबाव बनाने का काम कर रहे हैं। वैसे भूमिहीन परिवार के सदस्य काफी डरे हुए और सहमे हुए हैं। मैं सभापति महोदय से आग्रह करना चाहूंगा कि वैसे जो जमीन का अवैध कारोबारी सत्ता के संरक्षण में बैठे हुए लोगों के दबाव में किया जा रहा है, वैसे लोगों पर जांच करा करके कार्रवाई करने की कृपा की जाए सक्षम एजेंसी से। इस प्रकार का अवैध कारोबार बहुत तेजी के साथ झारखंड राज्य में चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री सुजीत कुमार। Chairman sir, my concern is about the new population criteria for the establishment of the Ekalabya Model Residential Schools (EMRS) and the non-operation of several EMRS across the country. Sir, as per the revised guideline released by the Ministry of Tribal Affairs in 2020, the criteria for setting up a EMRS in a sub-district is that the ST population of that sub-district should be 50% and the tribal population should be at least 20,000 in that sub-district. Sir, the Standing Committee on Social Justice and Empowerment in its 31st report submitted in April 2020 titled Review of the Functioning of the EMRS highlighted that the above population criteria is very unfair and discriminatory. Because, sir, we know that there are several tribal pockets in this country, several sub-districts which have substantial tribal population. May not be 50%, maybe 40%, 35%, 45%, but they are deprived of the EMRS schools because of this new population criteria. Even the 41st report of the said committee in its report of December 2020 has also flagged and expressed its concern about the same issue, sir. Sir, I'll give an example. In the state of Odisha, in the Palada block of Angul district, the ST population is 39.21%. In Kankadahada block of Dhenkanal, the ST population is 42.6. In Paikmal block of Bargarh district in Odisha, the ST population is 35.6. In Barkot block of Devgarh, the ST population is 31.7. Now, sir, what is the fault of the tribal children of these blocks? Just because the ST population of the block is not 50, they are deprived of good education. Sir, is it fair? I don't think it is fair, sir. It's a very, very good scheme. It's an excellent scheme, sir. But because of this arbitrary population criteria, poor tribal children are being punished and deprived of their economic and educational empowerment. Sir, the other issue I wish to raise is that according to the website of the Ministry of the Tribal Affairs, it is disheartening to see that of the 104 EMRS schools sanctioned for Odisha, only 34 are functioning, 32, sir. 72 are non-functional. Sir, now the Honorable Finance Minister during his budget speech highlighted that in the next 3 years, the center will recruit 38,800 teachers and support staff for the 740 EMRS, serving 3.5 lakh tribal children, which is highly commendable, sir. But, sir, how is this lofty goal going to be fulfilled when the schools are non-functional, when the school buildings are yet to be complete? So, sir, through you, I would like to revise this new population criteria and complete all the schools and make them functional. Thank you. श्री खीरू महतो। सभापति महोदय, डीएम की जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट का निर्माण आदरणीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने खनन प्रभावित क्षेत्र में पेयजल, शिक्षा, सड़क, रोजगार एवं अन्य विकास योजनाओं को क्रियान्वित करने के उद्देश्य से किया है, जिसमें फंड की व्यवस्था कोयला व्यवसायों से 30 रुपये प्रति टन कटौती की जाती है। झारखंड राज्य के रामगढ़ जिला में खनन प्रभावित क्षेत्र मांडू, चितरपुर, पतरातू ब्लॉक हैं, लेकिन इस जिले में इस फंड का जिला समाहरणालय में 1.5 करोड़, स्विमिंग पूल में 4 करोड़, टाउन हॉल बनाने में 2 करोड़, फर्नीचर में 8 करोड़, पार्क में 2.75 करोड़, इंडोर स्टेडियम में
7.5 करोड़ बाजार टाड़ में स्टेडियम निर्माण एवं 232 करोड़ टोटी झरना सौंदर्यीकरण तथा करोड़ रुपये सदर अस्पताल के सामानों की आपूर्ति करने में खर्च किए गए हैं। जिले में कर्मचारियों या आउटसोर्सिंग से बहाल कर कर्मचारियों के वेतन इसी फंड से देने की चर्चा भी जोरों पर है। उपरोक्त सभी कार्य DMFT फंड के मानक नियमों तथा ग्राम सभा से स्वीकृति लिए बगैर खान प्रभावित क्षेत्र की जगह शहरी क्षेत्र में किया गया है, जबकि खनन प्रभावित क्षेत्र मेरे गांव से हाउसिंग मोड़ से केदला बस्ती बाजार टाड़ तक लगभग 4 किलोमीटर जहां मेरा घर अवस्थित है, एवं दूसरा 40 वर्ष पूर्व बने नवाडी केदला परियोजना कार्यालय होते हुए झारखंड परियोजना से लइयो परियोजना तक लगभग 8 किलोमीटर पक्की सड़क काफी जर्जर है, जिसमें 20 गांव के भू विस्थापित लोग प्रभावित हैं। उपरोक्त रोड को बनाने या जिले में DFT फंड के इस प्रकार के दुरुपयोग होने की जांच हम भारत सरकार से करते हैं। श्री संतोष कुमार P. Sir, I demand a detailed probe into the dealings and transactions of Railway Development Authority, and I also demand the cancellation of a recently executed deed by the Indian Railway to hand over 7 acres of land for 45 years to a private company. Since the house is not in order, I don't want to continue with my speech. I urge the minister concerned through you, sir, to take necessary steps to initiate a probe into the allegations against ILD, Railway Development Authority. Dr. Sumer Singh Solanki. जी धन्यवाद माननीय सभापति महोदय नर्मदे हर। माननीय सभापति महोदय, मैं आपका एवं सदन का ध्यान एक महत्वपूर्ण संवेदनशील विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र के साथ संपूर्ण भारतवर्ष के विभिन्न क्षेत्रों में एक विकट स्थिति बनी हुई है। दिव्यांग नागरिकों के हाथों के अंगूठे, उंगलियां तथा आंखों के न होने के कारण आधार कार्ड नहीं बन पा रहे हैं, जिस कारण उन्हें सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाएं जैसे आयुष्मान कार्ड, मोबाइल कनेक्शन, राशन, पेंशन इत्यादि सरकारी योजनाएं जिसमें आधार कार्ड की अनिवार्यता दी गई, उनका संपूर्ण लाभ नहीं मिल पा रहा है। वर्तमान में हमारे देश के कुछ महानगरों में ही फेस रीडिंग के माध्यम से आधार कार्ड बनाने की प्रक्रिया संचालित है, जो कि हमारी सरकार का एक सराहनीय कदम है। परंतु देश के कोने कोने में निवास करने वाले दिव्यांगजनों की पहुंच इन महानगरों तक नहीं है, इसलिए दूर दराज क्षेत्र में रहने वाले दिव्यांगजन आज भी अपने आधार कार्ड नहीं बनवा पा रहे हैं। कुछ दिव्यांग भाई बहनों के आधार कार्ड बन भी जाते हैं तो उन्हें भी अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारतवर्ष में लगभग 2 करोड़ 10 लाख लोग किसी न किसी प्रकार की दिव्यांग जना की श्रेणी में। क्वेश्चन नंबर 91 श्री निरंजन